Hello everyone, welcome to the Manulog classes in the session of daily news analysis. Today is 24th of June 2024 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affair of the day. And first of all, moving to discuss the current affairs, first of all we have to revise our previous day session with the help of MCQs. So the first MCQ is regarding the Article 370. you know in the recent session we also discussed that election commission of India and the prime minister of India and also the current government saying that we are going to conduct elections very soon in Jammu and Kashmir, because after abrogation of Article 370 there have been no elections, especially regarding general, that is state legislative assembly. So now the government has the plans and the election commission of India has the plans, and it's have also completed some kind of exercises, some works to consider the elections in the upcoming time, because elections are also pending in some other states which can be conducted in the upcoming time, like Haryana and NCT of Delhi. So these kind of elections will be conducted. So the first of the question is that you have to revise that when after the abrogation of 370, the date when this amendment was done to the Constitution of India to abrogate Article 370. So this date becomes important for you for your upcoming examinations, that this amendment was done and this article was abrogated on August 5, 2019. The next question is Article 370 was drafted by. In recent politics of India and recent constitutional history of India, this Article 370 here we are talking about. It has been a very debated and discussed topic in Indian politics. And so you can be asked and you can expect a question that when it was actually drafted and who was the man behind the drafting of this article as a temporary provision in 1949 when the constitution was being drafted by the Constituent Assembly. So the man behind this article was N Gopalaswamy Iyengar. So इन्होंने इस article को draft किया था. So this question becomes clear here. Now we have another question. Find the correct statement among the following. Recently two important events have been held. One was in Italy, where in the Apulia region of Italy, the meeting of G7 was conducted, and India was also invited in that meeting, but Russia was not invited. And the another important event is the security pact between North Korea and Russia. So we have to revise both points with the help of these statements. So you have to find out the correct statement regarding these given options. So Russia is a member of G7. So you can find it easily that G7 is a G7 group, and currently Russia is not part of G7 because during 2014 when there was the war between Russia and Ukraine, and Russia annexed the region, that is Crimea region of Ukraine. So that's why in that retaliation Russia was expelled from G7 during 2014. So this statement is correct, but statement given in option A is incorrect. Next statement, India is not a member, yes, of G7. Yes, this is correct, but invited for its recent summit. Yes, so the whole statement is correct because India is not a formal member of G7 but has been invited by the G7 members as an invitee member. And so both statements, B and C, both are correct. The next statement is India has been invited first time in G7 summit. So this is incorrect statement because including the G7 summit of 2024, India has been invited in this summit 11th time. So 11 times India को invite किया जा चुका है. So that's why statement D is incorrect. Now we will have another question, very basic question. So recently Russia has signed a security pact. So obviously I have just pointed out that so it was North Korea itself. So उनके साथ में इनका
जो सिक्योरिटी पैक्ट है वो साइन हुआ है, जिसमें वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स दैट दिस सिक्योरिटी पैक्ट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कोल्ड वॉर। इस पैक्ट को लेकर के ये अभी गॉसिप्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि ये जो सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ है ये दोबारा से कहीं कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट ना कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट हेड ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो करंट हेड नॉर्थ कोरिया का कौन है? आप सबको पता होगा कि एक डिक्टेटर टाइप का पर्सन है और वो है आपका किम जोंग उन। ऑल्दो यू कैन फाइंड द नेम्स दोज आर सिमिलर in terms of the first names, but actually Un, it is the correct name of the head of North Korea. So next question is Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 was passed by the parliament in. So on 21st of June, when we were celebrating all over the world the International Yoga Day, the government of India notified the implementation of this act, and it will be implemented and it will be in implementation in force on from 21st of June. So ये 21st of June से इसका implementation हो गया, but इस बिल को पहले ही पास किया जा चुका था February 2024 itself. So later on इसको केवल notify किया गया है. The next question is recently which nation has become the latest after Spain, Ireland and Norway to recognize Palestine as a nation? You know, in recent sessions and news, we have also discussed that there are certain nations who those are recognizing Palestine as a complete state, as a nation, as a country. So one another country has become to recognize Palestine as a state, that is Armenia. So this is the correct answer. Now we will discuss current affairs for today. So let's start with the first one. अभी नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन में हमको कुछ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल टर्मोइल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज अभी रिसेंट इंडिया की जो फोर्सेस हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ ऐसा मटेरियल सीज किया है जो इंडिकेट करता है कि नॉर्थ ईस्ट में अदर कंट्रीज का भी कुछ हाथ हमको दिखाई दे रहा है, बिकॉज इनके पास में कुछ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ऐसी चीजें सीज हुई हैं, कुछ ऐसी बैटरीज, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स सीज हुए हैं। सो यहाँ की जो सिचुएशन है जिसको हम देख रहे थे कि मणिपुर में ऑलरेडी वायलेंस हुआ था, अगेंस्ट वुमेन वायलेंस हुआ था, तो वही सिचुएशन हमको इस स्टेट में मणिपुर में और उसके नियर बाय रीजन्स में दोबारा से टर्मोइल की तरफ जाती हुई दिख रही है। अब इस रीजन पर जब भी और मोर आर्टिकल्स आएंगे तब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो वहाँ के असम के आईजी हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने कहा है कि सिचुएशन जो है कुछ ऐसी है कि जिसमें हमें अदर कंट्रीज का भी इसमें हाथ दिख रहा है प्लस। और ये जो अभी मटेरियल जो सीज हुआ है बस वो एक छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मींस छोटा सा इंडिकेशन है, बड़ी चीजें तो अभी इसमें सीज होने वाली हैं। सो नॉर्थ ईस्ट पर भी आपको थोड़ी सी नजर बना करके रखनी होगी, बिकॉज और वहां से क्वेश्चन देखो जब भी कहीं किसी जगह पर रीजन में कोई पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, कुछ बड़े चेंजेस होते हैं, तो बेसिक से क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई बार वहाँ की ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ की कुछ ट्राइब्स हैं, कुकी ट्राइब्स हैं या उनकी नागा ट्राइब्स है ना, उनके मैतेई ट्राइब है, इनके नेम आप ध्यान रखना कि ये कौन कौन से स्टेट्स में आपको मिलती है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक आर्टिकल है और ये एडिटोरियल आर्टिकल है। सो वी हैव टू डिस्कस एंड टू एनालाइज दिस आर्टिकल इन डिटेल। और इस आर्टिकल के जो व्यूज होंगे आई विल डिस्कस ओनली दोज व्यूज बट नॉट माय पर्सनल व्यूज। सो आई हैव समराइज्ड दिस आर्टिकल फ्रॉम विद सम की पॉइंट्स। सो लेट्स हैव those key points from this article. First is the general overview. इस आर्टिकल में जो डिस्कशन किया है वो डिस्कशन है कि गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देनी होगी। और क्या है कि हिस्टोरिकली अगर हम अपनी गवर्नमेंट्स को देखें तो उन्होंने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा फोकस में नहीं रखा है। फिर ये बोल रहे हैं कि लास्ट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत प्रायोरिटी हमको देखने को मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट में, बट अभी भी हमको अर्जेंट नीड है ऐसी पॉलिसीज की जो कैसी हो, ग्रीन पॉलिसीज हो। ग्रीन पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज व्हिच प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द एनवायरनमेंट।
सो उन पर इन्होंने ये इंट्रोडक्शन हो गया कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कंसर्न, जब इस आर्टिकल में ये बताते हैं क्या क्या हमारे पास में कंसर्न है, कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है इंडियाज लीडरशिप। यह बात हो रही है एक्चुअली कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की फॉर्मेट में, या हम कहें कि क्लाइमेट चेंज का जो उसको रोकने के लिए एक लीडर की फॉर्मेट में इंडिया अपने आप को शो करता है। सो वर्ल्ड में अगर इंडिया अपनी लीडरशिप को चमकाना चाहता है, शो करना चाहता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट इन इंडिया। और क्लाइमेट चेंज के लिए हमें ऐसे इसेंशियल स्टेप्स लेने होंगे। यहाँ पर ये बात करते हैं कि इसेंशियल रिमेडिएटरी एक्शंस हमको लेने होंगे। मींस अब केवल इंपॉर्टेंस से बात नहीं चलेगा, इसेंशियल लेवल पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग रेजिलियंस, फूड सिक्योरिटी, फ्लड्स और ड्रॉट्स या ऐसी क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं, तो उनके लिए कंटिजेंसी प्लान्स हमको बहुत तेजी से बनाने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली अभी जो हीट वेव्स का हमने देखा, उसमें हम मोर देन 100 लोगों की डेथ हो चुकी है, बट स्टिल वी डोंट हैव द क्लैरिटी ऑफ पॉलिसीज एंड रूल्स। बिकॉज जो इंडिया का नेशनल डिजास्टर का जो फंड है या स्टेट का डिजास्टर फंड है, उसमें अगर हम बात करें तो ओनली 12 ऐसे डिजास्टर्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसे केसेस में फंड प्रोवाइड होता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। लेकिन उन 12 में अभी जो हीट वेव है वो नहीं है, और हीट वेव की डेफिनेशंस डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है। सो अभी ऐसी सारी चीजों को डील करने के लिए हमको कंटिजेंसी प्लान्स बनाने होंगे, अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लेकर के आने होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में ये पॉइंट उठाते हैं कि देखो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, जो फॉरेस्ट हैं उनको लेकर भी हमारे कंसर्न है। वो कंसर्न क्या है, ये उसके लिए एक फैक्ट प्रोवाइड कराते हैं कि इंडिया का जो पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर है, सो इंडिया के पर पर्सन के अगर हम बात करें तो 28 ट्रीज है पर पर्सन। लेकिन इसको अगर हम वर्ल्ड में अदर कंट्रीज से कंपेयर करेंगे देन वी विल फाइंड दैट कनाडा हैज 8953 और चाइना के पास में 130 ट्रीज हैं पर पर्सन। सो हमारे पास तो ओनली 28 हैं। सो हमको अपना फॉरेस्ट कवर बहुत तेजी से बढ़ाना होगा, तब हम कंट्रीज जो अदर कंट्रीज हैं वर्ल्ड की उनके साथ में अपने आप को जो है स्टेटस हम अपना मेंटेन कर पाएंगे। फिर ये इश्यू बताते हैं कि देखो लास्ट 20 ईयर्स में जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत तेजी से, या हम कहें कि उसमें डिक्रीजमेंट हुआ है। फिर ये इशू बताते हैं कि हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ऑलरेडी, ठीक है, उस एक्ट में 2023 में अमेंडमेंट किए गए थे, तो उनकी तरफ कहते हैं कि फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसको हमने चेंज किया है, उसमें और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं उनको हमें चेंज करना होगा जो कि फॉरेस्ट के फेवर में हो, ना कि जो नॉर्मल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, डैम्स का कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइंस, पोर्ट्स और आपके एयरपोर्ट्स, उनके कंस्ट्रक्शन के फेवर में ना हो हमारी पॉलिसी। मींस आवर पॉलिसीज शुड बी इन फेवर ऑफ द क्लाइमेट और इन द फेवर ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये बात करते हैं। फिर ये इश्यूज को बताते हैं हमको कि देखो सिटीज की क्या सिचुएशन इस समय पर है। तो सिटीज की सिचुएशन की अगर बात करेंगे तो ये कह रहे हैं कि देखो मेजर सिटीज की अगर हम इंडिया में बात करें कि दिल्ली एंड मुंबई, ये एक मेजर मींस सीवियर एयर पॉल्यूशन से इनको फेस कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन यहाँ पे इसमें फेस हो रहा है। फिर एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बेंगलुरु का, आपके चेन्नई का, दिल्ली का। फिर में उसको रिलेट करके बताते हैं रिवर से, कि एक टाइम ऐसा था कि ये जो रिवर्स थी जिनके बैंक पर ये बड़े बड़े शहर जो सिटीज हैं आज जो है सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं, वो कभी वो जो रिवर्स थी वो लाइफ लाइन हुआ करती थी उन सिटीज की। लेकिन आज वो सिटीज आज वो जो रिवर्स है वो सीवर्स बन करके रह गई हैं। कि मींस आप दिल्ली में ही चले जाइए तो रिवर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो रिवर कोई नाले से ऐसी ही दिखती है हमको, यमुना रिवर। बट अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करोगे, इंडिया की क्या पूरे वर्ल्ड की अगर आप बात करोगे, तो देखोगे कि बड़े बड़े जो शहर हैं, सबसे जो ओल्ड सिटीज हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी इंपॉर्टेंट रिवर के बैंक पर ही बसे हुए हैं। जैसे हम इंडिया में एग्जांपल ले सकते हैं कि गंगा रिवर के किनारे हम देखते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं आपका, चाहे वो इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, है ना। इधर यमुना की बैंक पर हम देखते हैं अपना, चाहे दिल्ली हो, मथुरा हो, आगरा हो, ये सारे सिटीज इन रिवर्स के किनारे बसे थे। लेकिन आज ये सिटीज इंपॉर्टेंट हो गए और इन सिटीज ने उन रिवर्स को ही एनगल्फ कर लिया। मींस जिन रिवर्स के बेसिस पर उन सिटीज की लाइफ का एग्जिस्टेंस था, अब उस सिटी की लाइफ ने, उन सिटीज ने इन रिवर्स के जो एग्जिस्टेंस है उसको ही डेंजर में डाल दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट हम इसमें ये पॉइंट आउट करते हैं, एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने फैक्ट प्रोवाइड किया है इसमें कि इंडिया में जो जितना भी सिटीज से सीवरेज निकलता है, वेस्टेज निकलता है, वो ओनली 28% का ही हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है। इट मीन्स 72% जो जितना भी सीवरेज है वो सब अनट्रीटेड इन रिवर्स में जा रहा है। कहाँ जा रहा है फिर? ओनली 100% में से 28% का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो बाकी सारा का सारा इन रिवर्स में ही जा रहा है। फिर ये एक पॉइंट और रेज करते हैं कि डिस्ट्रक्शन इन द हिमालयस, तो चाहे वो हिमालय की बात हो या अदर जो है वर्ल्ड में हम और कहीं की भी बात करें, तो ग्लेशियर्स बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। उसके लिए भी इंडिया को काम करना होगा कि जिससे हम बड़े लेवल पर उसको डील कर सकें। फिर ये बात करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन की, कि हमको इस एनवायरमेंट कंजर्वेशन को, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए पीपल के पार्टीशन पर काम करना होगा। इट मीन्स अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर इनका इंडिकेशन है कि जैसे हमने स्वच्छता अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान जो चला था, उसको हमने पीपल्स का मूवमेंट बनाया, उसी तरह से हमको एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज को लेकर के लोगों का मूवमेंट मींस मास पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल देखना होगा, तब हम इसको डील कर पाएंगे। फिर ये एक बात करते हैं कि जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की मैकेनिज्म है, मीन्स जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनता है, कुछ डेवलपमेंट होता है, तो उस एरिया में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि इस डैम से, इस रेलवे लाइन से, इस एयरपोर्ट से वहां के एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। सो ये कह रहे हैं कि वो एक फॉर्मेलिटी बन करके रह गया है, उसके जस्ट चेक्स बॉक्स की तरह बन करके रह गया है कि उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसमें ऑफिसर्स टिक करते चले जाते हैं। ऑन ग्राउंड उससे हमको बहुत कुछ चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करो, उसको एक लॉ बनाओ। जो ओनली गाइडेंस हैं उनको एक लॉ में लेकर के आओ कि उसका अगर वायलेशन हो तो पनिशमेंट की भी उसके लिए कुछ प्रोविजन होना चाहिए। अनोदर फिर ये बात करते हैं ग्रीन वॉशिंग की, कि देखो देखने में हमें बहुत सारी पॉलिसीज दिखती हैं, चाहे वो कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन की बात हो, चाहे वो ग्रीन क्रेडिट्स की बात हो, तो ये कहते हैं कि ये सब ग्रीन वॉशिंग है, दिखावे के लिए है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और तो प्रॉब्लम और कहां से आती है कि भाई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म हमारी ठीक नहीं है, उनको ठीक करना होगा। फिर ये बात करते हैं कि कॉल टू एक्शन और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो अभी जो हमने बातें की, आप भी कुछ कमेंट में बताइएगा कि हम कैसे इसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपके क्या क्या सजेशंस हैं। सजेशंस में यहाँ पर ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना होगा, गवर्नमेंट को इसको प्रायोरिटी पर रखना होगा कि हेल्थ टू ट्रूली सर्व द पीपल। यहाँ पर ये जो है एंड में बोलते हैं कि इफ वी वांट टू सर्व पीपल देन वी हैव टू सर्व दिस नेचर, सर्व द एनवायरनमेंट। सो दिस वाज द आर्टिकल। नाउ वी विल गोइंग टू अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसको आपने देखा होगा कि अभी जो है एक ह्यूज ट्रेजेडी हुई इंडिया में, साउथ इंडिया में हमने देखने को मिली। इसमें क्या था कि जो पॉइजन वाली लिकर थी, उस पॉइजन वाली लिकर ने ऐसा कुछ मीन्स लोगों की जान ले ली और मैनी पीपल्स उसमें अपनी लाइफ से हाथ धो बैठे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि अराउंड 50 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। तो इसको मैं आपको एज ए इसकी समरी बताता हूँ कि इंडिया में इलीगल लिकर, पॉइजन वाली लिकर से लोगों की डेथ कैसे होती है, क्या इसका मैटर है एक्चुअल में, हम इसको क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये देखिए आप, एक्चुअल में होता क्या है कि जो एथेनॉल और मेथनॉल होता है उसके लिए बहुत सारा वेस्टेज इसको यूज किया जाता है और उसको बनाया जाता है। अल्टीमेटली उसको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल यूजेज होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह सब बहुत कुछ बनता है, और फिर उसको एज ए बायोफ्यूल भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज है, एक तो है एथेनॉल और एक है आपका मेथनॉल। क्या इशू होता है इसका, एथेनॉल और मेथनॉल का? देखो, जो एथेनॉल है ये बायो प्रोसेस के थ्रू, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है एथेनॉल को, ये पॉइजनस नहीं होता। जो मेथनॉल है वो कोल माइनिंग वगैरह, कोल वगैरह जो होता है उससे इसको डेवलप किया जाता है और ये होता है प्रॉपरली पॉइजनस।
अब होता क्या है कि जैसे प्लांट में एथेनॉल बनता है वहां पर मेथनॉल भी उसमें होता है, लेकिन वहां पर प्रॉपरली साइंटिफिक प्रोसेस से दोनों को ही जो है सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चल करके क्या होता है कि जब इस एथेनॉल और मेथनॉल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो जो रास्ते में ट्रक वाले होते हैं या और भी जो स्मगलर्स होते हैं उसमें से उस मेथनॉल को निकाल लेते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। क्यों सेल कर देते हैं? जो एथेनॉल है इसी को प्रोसेस कर करके बनती है आपकी वाइन, या मैं बात करूं जिसको लिकर, एल्कोहल, जिसको लोग कंज्यूम करते हैं नशे के लिए, ये आती है काफी महंगी। और जो मेथनॉल है ये आती है काफी सस्ती। तो लोगों को कई बार ये लगता है कि इतनी महंगी दारू जो एथेनॉल से बनी है वो पीने से अच्छा है कम अमाउंट में हम मेथनॉल पी लें, ऐसा लोगों को कई बार लगता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेथनॉल का छोटा सा भी अमाउंट आपको यमराज से बात करा देगा आपकी सीधे। ठीक है, तो इंडिया में जो कंडीशन बनती है, जहरीली शराब के जो केसेस हमको देखने को मिलते हैं इस मेथनॉल की वजह से मिलते हैं कि छोटा सा भी अमाउंट वो यूज करते हैं। अब इसके पीछे होता क्या है कि इस मेथनॉल को इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए भेजा जाता है, बाद में जो बीच में रास्ते में ट्रक्स वगैरह से, उनसे टैंकर्स वगैरह से इसको वहां से चोरी से भेज दिया जाता है और उसको बाद में जो है वाटर के साथ में डाइल्यूट करके, मिक्स करके, होता है ना कई बार लोगों को लगता है कि ज्यादा सा पानी ले लो उसमें थोड़ी सी ये मेथनॉल डाल लो तो शराब का ही काम कर जाएगी। भाई लोग शराब नशे के लिए पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, मीन्स अपनी जीप पर सांप से कटवा रहे हैं। ठीक है, जो सुलोचन आता है पंक्चर लगाने वाला, लोग उसको भी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, बिच्छू का जहर कंज्यूम कर रहे हैं। सो लोगों को लगता है कि जब इतनी सारी चीजें कर सकते हो बोला ऐसे कर सकते हैं। और इसमें मरने वाले कौन होते हैं मोस्टली? वो होता है इंडिया का पुअर मैन, अनएजुकेटेड मैन, इलिटरेट मैन, बिकॉज इनको पता नहीं होता और इनको ये देसी दारू के नाम पर सेल कर दी जाती है, लोग मर जाते हैं, उसमें उनकी डेथ होती है। प्रॉब्लम कहां पर है कि जहां इसका प्रोडक्शन हो रहा है इस प्लांट में, कई बार यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं इसको चोरी से बेचने में, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और बाकी के बीच में फिर जो बहुत सारे दलाल होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट को इस पर लेकर के आना चाहिए एक प्रॉपर लॉ, और लॉ ऐसा हो कि मींस उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, और उनको मींस मैं तो कह रहा हूं हैंग हिम अंटिल डेथ, ये वाला भी उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, ये मर्डर ही तो कर रहे हैं। कैसे? किसी को जहर पिला करके। सो उन पर भी मर्डर के केस चले और उनको पनिशमेंट मिले प्रॉपर। सो दिस वाज द आर्टिकल रिगार्डिंग पॉइजनस लिकर। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर ईयर्स रसिया अप्रूव्स ड्राफ्ट लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट टू बी साइंड विद इंडिया। काफी टाइम से इंडिया का जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट था वो पेंडिंग में था, लेकिन अब इस एग्रीमेंट को रसिया ने साइन कर दिया। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी होगा। ये है क्या, इसको मैं आपको समरी फॉर्म में अभी जस्ट बता देता हूँ कि जैसे हमने 2016 में यूएसए के साथ में ही ऐसे कुछ एग्रीमेंट साइन किए, बाकी अदर कंट्रीज के बाद में लेटर ऑन हमने साइन किए, अब हमने रसिया के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। और उसमें क्या होगा कि जो इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस हैं वो और रसिया की मिलिट्री फोर्सेस हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगी। कैसे मैटर में? लॉजिस्टिक्स के मैटर में। ठीक है, ड्राफ्टेड लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। तो लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आएगा कि सपोज करो रसिया का कोई शिप इंडिया वाली साइड से जा रहा है किसी वॉर के टाइम पे, नॉर्मल टाइम पे, एक्सरसाइज के टाइम पे, अब उनको पेट्रोल की, फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, डीजल की रिक्वायरमेंट है, तो अब वापस रसिया तो लेने जाएंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे फिर इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स या जो भी जैसा भी उनका सिचुएशन होगा उनसे हम या वो एक दूसरे से लॉजिस्टिक्स में हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो फ्यूल की बात हो, चाहे शिप में कोई इक्विपमेंट को रिपेयर करने की बात हो, ठीक है, चाहे वहां पर रेस्ट करने की बात हो, तो उनमें सब में रशिया और इंडिया एक दूसरे को हेल्प करेंगे। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम तब आती है जब वॉर की सिचुएशन होती है, तो चारों तरफ नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनके हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हमारे जो वॉरशिप्स इधर उधर बहुत सारी जगह पर ऑपरेशन करते हैं या मूव करते हैं। तो अब रास्ते में उनको कई बार कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तब उस इतने बड़े ओशियन में कहां से वो मींस लेकर के आएंगे वो हेल्प।
तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उन कंट्रीज की। सो ऐसे ही एग्रीमेंट हमने वर्ल्ड के अदर कंट्री के साथ में भी साइन किए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में पुष्पक, इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। पुष्पक क्या है? इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। कैसा है ये? रीयूजेबल मींस बार बार इसको हम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। कि कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भेजा या हमने स्पेस में किसी मिशन के लिए भेजा तो हम उसको दोबारा से यूज कर सकें। इसने अभी जो थर्ड टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर लिया। एक्चुअली में इसके पहले फर्स्ट और फिर सेकेंड और थर्ड, तो फर्स्ट टेस्ट में ये पास रहा, फिर सेकेंड टेस्ट भी इसने पास किया और थर्ड टेस्ट को भी इसने पास कर लिया। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इसरो। और इसरो तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं इंडिया को बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं स्पेस सेक्टर में। चाहे वो आप मंगलयान की बात कर लो, चंद्रयान की बात कर लो, आदित्य L1 की बात कर लो, चाहे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज इंडिया भेजते हैं अपनी सैटेलाइट्स को कि इसरो से लॉन्च करवाएंगे हम अपनी सैटेलाइट, है ना। सो उसके लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है। बाकी जो एक्सपेरिमेंट होने थे वो मोस्टली हो चुके हैं। इन्होंने एक सिमुलेशन के फॉर्मेट में इसको यूज कर लिया और इसकी स्पीड वगैरह को भी ये कंट्रोल कर पाए। जब ये लैंड किया लैंड पर तो उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से इन्होंने टेस्ट कर लिया। तीनों टेस्ट इसने पास कर लिए और बड़े बड़े राइगरस टेस्ट जो थे, टफ टेस्ट थे, वो सब उसमें पास हो गया ये। सो आने वाले टाइम में इसको अब बड़े स्केल पर, एक्चुअल स्केल पर इसको डेवलप किया जाएगा और वो इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। So in this session for news discussion, we have discussed multiple news, multiple articles, and we also revised the previous day session with MCQs. And in another session, we will meet again with same or in important articles. So तब तक के लिए bye bye, take care.